verb is in the past tense, how we will change the modal auxiliary, modal verb. Will, if will is there, it will be changed into would. Can will be changed into would. Shall, should. May, might. Okay? If the reporting verb is in the past tense, the reporting verb is in the past tense, will, it will become the would in indirect speech. Shall will become should in indirect speech. Can will become could in indirect speech, and may will become might in indirect speech. Okay? I hope that it is clear. Till here it is clear to all of you. Now, changing in pronouns. In indirect speech, we change the pronouns as well according to the subject. According to the subject, we change the pronouns as well. The pronouns of the reported speech are changed according to the pronouns of the reporting verb. जो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज करते हैं. ओके, यहाँ पे जो प्रोनाउंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो प्रोनाउन है उसको हम चेंज करेंगे. Now you can see rule 3. First person of reported speech will be changed according to the subject of the reporting verb. Okay, यहाँ पे जो first person होगा वो reported verb में जो pronoun होगा उसके according हम change करेंगे. Just if you are confused about changing the pronoun, अगर किसी भी sentence में आपको doubt होता है and you are confused कि यहाँ पे कौन सा pronoun हम use करेंगे, just translate the sentence into Hindi. हिंदी में पहले sentence को translate करो. It will be clear for you वहाँ पे क्या use होगा. He tells me that he is a boy. He says to me, I am a boy. उसने मुझे बोला कि I am a boy. और कौन boy है? वो boy है. He is a boy. ठीक है? He tells me that he is a boy. Understood everyone? Okay. So in this way we change the pronoun as well. In the same way, first person जैसे change हो जाता है. First person means I, we, वो है I and we. These are the first person. We change the first person according to the reporting pronouns of reporting verb. In the same way, second person pronouns of reported speech. This second person is also changed according to the pronouns of reporting verb. Okay, reporting verb में जो change pronouns है उसके according हम second person को भी change करेंगे. And third person of the reported speech remain unchanged. But जो third person है, the pronouns in third person, third person, these will remain the unchanged in indirect speech. वो हम change नहीं करेंगे, वो as it is रहेगा. For example, I say he is a boy. I tell that, or I say that he is a boy. It will remain the same because he is third person. First person and second person can be changed, but third person cannot be changed in indirect speech. Okay? Next one is changing of words showing nearness. There are certain words which we change in indirect speech. For example, here, there, these, those, and yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, or the following day, now, then. So these are the words which we change in indirect speech. Okay? Just let me send the book to you. Today, in the subject of the manufacturing technology, we will discuss about the unit 5 electrochemical machining. सर हाँ बताइए. सर हाँ सर मेरा ना नेटवर्क थोड़ा वीक है, मेरा ना बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है. सर मेरी अटेंडेंस लगा लो सर एक बार, कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए. अच्छा ठीक है, मैं आपका अटेंडेंस प्रिंस सरोवा जी का लगा दिया है ना. सर रोल नंबर 31. हाँ लगा दिया, आपका लगा दिया. ठीक है सर. तो in the case of the unit 5
electrochemical machining. Electrochemical machining will be discussed. Electrochemical machining is also discussed one day, and we have known about what are the principles of the electrochemical machining, what are the process parameter, what are the applications, what are the advantages, and what are the disadvantages. Now in depth we will go for the electrochemical machining. In the case of the electrochemical machining, we will study about the metal removal rate, we will study about the chemistry of the electrochemical machining. Hence, the process of the metal removal by the electrochemical dissolution is now long back at the 1780 AD. But only over the last couple decades, these methods have been used to the advantage, and it is put in the industry for the many applications. If any person know about the electrochemical machining, electrical discharge machining, then the demand of that person is more in the industry, because these type of the machines are now putting back in the industry. इंडस्ट्री में ईसीएम लगाए जा रहे हैं, ईडीएम लगाए जा रहे हैं, इसीलिए ईडीएम और ईसीएम का जानना बहुत जरूरी है. जो उसको जानता है उसकी जॉब भी जल्दी लग जाती है. Hence it is also known as the contact-lax electrochemical forming process. इसको इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्मिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें आपको जो शेप है वो आपको फॉर्म किया जाता है. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का आपको प्रिंसिपल दिखाया गया है. इनिशियल स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग. हियर इज द टूल, हियर इज द वर्कपीस, एंड हियर इज द इलेक्ट्रोलाइट. व्हेन द करंट इज पास्ड, then the shape of the workpiece will be produced as the shape of the tool. This is the steady state electrochemical machining, and this is based on the Faraday's law. Faraday's law. Hence, the noteworthy feature of the electrolysis is that electrical energy is used to produce a chemical reaction. Therefore, the machining process based on the principle is known as the electrochemical machining. है ना? This process works on the principle of the Faraday's law of the electrolysis. ये आपको Faraday's law of electrolysis पे आपको depend करता है. Michael Faraday discovered that if the two electrodes are placed in a bath containing a conductive liquid and the DC potential 5 to 25 volt is applied across them, metal can be depleted from the anode and plated on the cathode. है ना? फैराडे ने ये आपको खोज निकाला कि जो इतना, अगर दो इलेक्ट्रोड को इतना वोल्टेज पोटेंशियल के बीच में एक कंडक्टिंग लिक्विड में अगर रखा जाता है तो मेटल जो है एनोड से आपको कैथोड में चला जाता है. दिस प्रिंसिपल वाज यूज्ड इन फॉर द लॉन्ग टाइम, एंड ईसीएम इज द रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ईसीएम जो प्रोसेस है आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिवर्स प्रोसेस है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, उसमें आयंस जमा हो जाते हैं, मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं. यहां पर आपको मेटल जो है रिमूव किया जाता है, डिपॉजिट नहीं होता है, इसीलिए ये रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है. ECM can be thought as a controlled anodic dissolution at the atomic level of the workpiece that is electrically conducted by a shaft tool due to the flow of the high current at relatively low potential difference through an electrolyte which is quite often water-based natural salt solution. ECM में पूरा ECM प्रिंसिपल को एक लाइन में यहां पर आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है. It is a controlled anodic dissolution process and electrically conductive shape tool due to the flow of the high current at relatively potential difference through an electrolyte which is quite often water-based natural salt solution. ये उसमें आपको ECM process आपको यूज किया जाता है. In ECM, electrolyte is so chosen that there is no plating on tool and shape of the tool remains unchanged. ECM process में no plating on the tool.
आपको प्लेटिंग टूल पे नहीं होता है और टूल का जो शेप है आपको अनचेंज रहता है, ये आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आपको डिफरेंस आपको बता रहा है। इफ द क्लोज gap 0.1 to 0.12 mm is maintained between the tool and the workpiece, the machine surface takes the replica of the tool surface. दोनों के बीच में अगर इतना गैप रखा जाए वर्कपीस और टूल के बीच में, तो टूल का जो शेप है वही शेप आपको वर्कपीस में आपको बन जाता है। यही आपको ईसीएम प्रोसेस है। आपको बहुत ही सिंपल, आपको ईसीएम प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है आपको बहुत सिंपल है। वो एक वर्कपीस रहेगा, एक टूल रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, और जो है दोनों को वोल्टेज से आपको लो वोल्टेज से ज्वाइन कर दिया जाएगा। धीरे धीरे जो टूल का शेप है वो आपको वर्कपीस का टूल में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द ईसीएम प्रोसेस। एंड नाउ कम टू द केमिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस. What is the chemistry of the ECM process? During ECM, there will be reaction occurring at the electrodes, at the anode or workpiece, and the cathode or tool along within the electrolyte. ECM process में एनोड जो कि वर्कपीस होता है, कैथोड जो कि टूल होता है, दोनों पे आपको रिएक्शंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस होगा। वो आपको रिएक्शंस आपको यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। Let us take an example of machining of the low carbon steel, which is primarily ferrous alloy, mainly containing iron. Electrochemical machining of the steel, generally a natural salt, sodium chloride is taken. The electrode and water undergoes ionic dissolution, है ना। तो ये रिएक्शन आपको उसमें होगा। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द ईसीएम प्रोसेस। NaCl आपको Na प्लस में Cl माइनस में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, H2O H प्लस प्लस OH माइनस में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। As the potential difference is applied between the workpiece and the tool cathode, the positive ions move toward the tool and negative ion move toward the workpiece, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल, हेंस द पॉजिटिव आयन जो है आपको टूल की तरफ चला जाएगा और निगेटिव आयन जो है आपको वर्कपीस की तरफ चला जाएगा, है ना। पॉजिटिव आयन टूल की तरफ जाएगा और निगेटिव आयन जो है वर्कपीस की तरफ जाएगा। thus the hydrogen ion will take the electrons from the cathode and from the hydrogen gas. इसीलिए आपको H प्लस यहां से निकला और ये H2 आपको कैथोड में आपको लिबरेट होगा। दूसरा है आयरन आइटम्स विल कम आउट ऑफ द वर्कपीस एज फॉलो। जो वर्कपीस है वहां से आपको Fe प्लस आयन आपको निकलेगा। Within the electrolyte, ions would combine with the chloride ions to form the iron chloride, and similarly sodium ions would combine with the hydroxide ions to form the sodium hydroxide. ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बनेगा। दूसरा FeCl2 and FeOH2 ये आपको प्रिसिपिटेट होगा इन द फॉर्म ऑफ द स्लज। ये आपको स्लज के फॉर्म में आपको ये जो है आपको प्रिसिपिटेट होगा। स्लज के फॉर्म में आपको वहां पर आपको FeCl2 और FeOH2 ये आपको यहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको फिगर 2 ये आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको दिखा रहा है। FeCl2 FeOH2 ये आपको स्लज के रूप में आपको इलेक्ट्रोलाइट में आपको मिल जाएगा। वर्कपीस से Fe आयन आपको बाहर होगा, ये आपको बाहर होगा और यहाँ पर आपको जो Fe आयन बाहर होकर के ये आपको शेप यहाँ पर आपको बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, FeOH2 बन जाएगा, है ना। तो ये शेप आपको बन जाएगा। समरी ऑफ कैथोड। अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस, हाँ अभी लड़के ज्वाइन कर रहे हैं। कितना रोल नंबर है आपका, बोलिए। हेलो, हाँ बताइए कितना रोल नंबर है। हाँ सर, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 अभिषेक कुमार दुबे जी, आपका अटेंडेंस लग गया। 19 सर, 19। हाँ लगा दे रहा हूँ सबका। सर रोल नंबर 2। हाँ नहीं सबका लगा दे रहा हूँ। ओके सर।
अभिषेक कुमार दुबे जी, रोल नंबर 2। हाँ सर। 41 शेखर जी। 39 रौनक कुमार जी। अंकित शर्मा जी 06। आशीष जी 7। चंदन शाह जी 8। हिमांशु जी 17। हृदय जी 19। जितेंद्र राणा जी 23। नंदिनी जी 29। पवन सिंह नेगी जी 30। प्रिंस सरोवा जी 31। जैनेश चौहान जी 22। सर मैं अभी आया हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? आकाश पवार, रोल नंबर 3। आकाश पवार जी, रोल नंबर 3। हाँ, आपको इंटर हो गया है। तो अभी जो अटेंडेंस है, जैनेश चौहान जी 22, प्रिंस सरोवा जी 31, पवन नेगी जी 30, नंदिनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, आशीष जी 7, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2, रौनक कुमार जी 39, एंड शेखर कुमार जी 41, एंड राहुल कुमार जी 32, राहुल ठाकुर जी 32। ये सभी का अटेंडेंस बन गया है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। आवाज तो आ ही रही होगी। हमारे यहाँ तो माइक लगा हुआ है, इसीलिए आवाज तो, यस सर। आवाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइक लगा हेलो हुआ है। सर। हाँ, बताइए। सर कितने में लगा माइक? माइक का कॉस्ट पूछ रहे? हाँ सर। माइक 2500 का है, ये अमेजोन से मंगाया है ये। सर हमारा यार सर। बेड है। हाँ, ठीक है, पैसे ओके। ये जो है आपको समरी ऑफ द कैथोड एंड एनोड रिएक्शन, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्या केमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का। वर्कपीस यहाँ पर है, टूल यहाँ पर है, आपको Fe आयन यहाँ से निकलेगा और Cl आयन आपको यहाँ से मिलेगा, FeCl2 निकलेगा और Fe और OH से आपको मिलेगा FeS2। ये आपको स्लग के रूप में प्रिसिपिटेट हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन जो है गैस आपको लिबरेट हो जाएगा। तो जो आपको कैथोड और एनोड रिएक्शन का है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा Na प्लस E Na प्लस H2O NOH और हाइड्रोजन प्लस 2E H2O, ये आपको कैथोड पे होगा। और एनोड पे जो रिएक्शन होगा, एनोड का मतलब वर्कपीस है, कैथोड का मतलब टूल है। आयरन Fe, यहाँ पर Fe आयन लिबरेट होगा और 2Cl FeCl2 बनेगा और 2H FeOH बनेगा और FeCl FeOH2 बनेगा। तो ये आपको यहाँ से वर्कपीस से Fe आयन लिबरेट होगा और ये सारे जो है स्लज बनेंगे। It is shown that the metal workpiece Fe goes into the solution and hence the machine to produce reaction products as iron chloride and iron hydroxide। ये आपको रिएक्शन आपको बता दिया गया कि ये रिएक्शन आपको होगा। दूसरा, जो वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप ECM में कहां पर क्या होगा, ये इस फिगर में आपको दिखाया गया है। जो वोल्टेज जो है उसमें अप्लाई किया जाता है अराउंड 2 वोल्ट टू 30 वोल्ट अप्लाइड किया जाता है एंड ओवरकम्स दैट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल, ओमिक पोटेंशियल ड्रॉप, कंसंट्रेशन ओवर पोटेंशियल ड्रॉप, ओमिक रेसिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप। ये सारे जो वोल्टेज ड्रॉप आपको दिखाया गया है यहाँ पर, कैथोड पे आपको ओवर पोटेंशियल होगा, एनोड पे ओवर पोटेंशियल होगा। और ये जो आपको ओमिक पोटेंशियल कंसंट्रेशन है, एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल है,
कैथोडिक पोटेंशियल है, ये आपको वोल्टेज ड्रॉप कहां पर कितना होगा, ये इस फिगर में आपको दिखाया गया है। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में फॉलोइंग मॉडल्स आपको यूज किया गया है। उसमें पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई एंड क्लीनिंग सिस्टम, टूल एंड टूल फीडबैक सिस्टम, वर्क पीस एंड द वर्क होल्डिंग सिस्टम, ये चार उसमें जो है आपको ये दिखाया गया है। और इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग यूनिट का फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का, इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग का आपको कंप्लीट फिगर सेटअप आपको यहां पर दिखाया गया है। टूल यहां पर है, वर्कपीस यहां पर है, ये आपको फिक्चर है, और यहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइट है। लो वोल्टेज हाई करंट पावर सप्लाई दिया गया है, कांस्टेंट फीड टू द टूल दिया गया है। प्रेशर गेज में प्रेशर मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, फ्लो मीटर दिखाया गया है। फ्लो कंट्रोल, ये इलेक्ट्रोलाइट का आपको फ्लो को क्लियर किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो है, ये पंप से आपको यहां से आपको स्लज आपको बाहर होता है, स्लज बाहर होकर के स्लज यहां पर कंटेंट हो जाता है। स्लज को आपको फिल्टर करके आपको यहां से बाहर करके आपको यहां पर दिया जाता है। ये पंप आ जाता है, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व हो जाता है, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व हो जाता है, ये फ्लो मीटर हो जाता है, ये आपको प्रेशर गेज हो जाता है। तो ये आपको कंप्लीट सेटअप इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। कंप्लीट सेटअप इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ये फिगर आपको जानना जरूरी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का आपको सेटअप, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई एंड द क्लीनिंग सिस्टम, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, सप्लाई एंड क्लीनिंग सिस्टम यूज किया जाता है। उसमें एक पंप होता है, फिल्टर होता है, पाइपिंग होता है, कंट्रोल वाल्व्स होता है, हीटिंग और द कूलिंग कॉइल्स होता है, प्रेशर गेज होता है और स्टोरेज टैंक होता है। ये सारे आपको क्लीनिंग सिस्टम आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। इलेक्ट्रोलाइट्स सप्लाई पोर्ट्स में भी मेड इन द टूल वर्क और फिक्चर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फ्लो, ये आपको लगाया जाता है ना। तो इसमें आपको जो गैप रखा जाता है, यूजुअली जो है 1 mm का गैप मेंटेन किया जाता है, दोनों का आपको इलेक्ट्रोड का गैप का, है ना। फिल्टर मेड ऑफ द एसएस स्टील, मोनल और एनी अदर एंटी कोरोसिव मटेरियल, उसका बनाया जाता है ना। It should be ensured that the piping system does not introduce any foreign material like corroded particles, scale or pieces of the broken seal material. Piping system is therefore made of the stainless steel, glass fiber, composite material, plastic line MS और similar other anti-corrosive material, इसके जो है आपको बनाया जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट टैंक है, उसमें 500 गैलन जो है फॉर द करंट जो है आपको यूज किया जाता है। ए सिंगल टैंक सिस्टम ये आपको यूज किया जाता है। इट रिजल्ट्स इन द हायर कॉस्ट एंड पुअर एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन सरफेस, ये यूज किया जाता है। टूल एंड टूल फिट सिस्टम, आपको एंटी कोरोसिव मटेरियल फॉर टूल्स एंड द फिक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेट इन द कोरोसिव एनवायरनमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। easy machining of the tool material is equally important because of the dimensional accuracy and the surface finish. Aluminium, brass, bronze, copper, carbon, stainless steel and molal are the few of the material used for the tool. टूल का जो मटेरियल होगा वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, और जो टूल फीड सिस्टम है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। For example, lack of insulation on the sides of the sinking tool causes unwanted machining of the work and result in a loss of the accuracy of the workpiece. Also, the fixture and tool should be rigid enough to avoid the vibration or the deflection under the high hydraulic forces to which them, है ना। वर्कपीस जो है, वर्कपीस एंड द वर्क होल्डिंग सिस्टम, only electrically conductive material can be machined by this process. इस प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल ही आपको मशीन होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज अप्लाई होता है।
तो दूसरे मशीनिंग प्रोसेस जैसे यूसीएम था, यूएसएम था, एब्रेसिव जेट मशीनिंग था, उसमें आपको नॉन कंडक्टिव मटेरियल भी आपको मशीन हो जाता था। यहां पर आपको वो आपको मशीन आपको नहीं होगा। इसमें आपको जो सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल आपको होगा। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ द इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल हैविंग गुड थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी, है ना। ये ग्रेफाइट फाइबर्स का होगा, रेनफोर्स प्लास्टिक्स का होगा, प्लास्टिक्स का होगा एंड परसेप्टर का होगा। ये जो आपको वर्क होल्डिंग सिस्टम है। दूसरा प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस पैरामीटर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, वो आपको यहां पर आपको सारा बताया गया है। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोलाइट, वर्किंग गैप, साइड ओवरकट, फील्ड रेट, इलेक्ट्रोड मटेरियल, टॉलरेंस, रफनेस, ये आपको सारा आपको डिटेल में आपको यहां पर बता दिया गया है। पावर सप्लाई में आपको डीसी पावर यूज होगा, वोल्टेज आपको 30 वोल्ट यूज होगा, करंट आपको हाई करंट 40,000 एम्पियर यूज होगा, करंट डेंसिटी आपको 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर यूज होगा। और इसमें आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl होगा, NO3 होगा, प्रोप्राइटरी मिक्सचर होगा, टेम्परेचर होगा 26 to 50 डिग्री होगा, फ्लो रेट 16 to LPM to 20 LPM होगा, वेलोसिटी 1500 मीटर पर मिनट टू 3000 मीटर पर मिनट होगा, इनलेट प्रेशर 2200 किलो पास्कल होगा, आउटलेट प्रेशर 300 किलो पास्कल होगा, वर्किंग गैप आपको इतना होगा, साइड ओवरकट इतना होगा, फील्ड रेट इतना होगा, इलेक्ट्रोड मटेरियल कॉपर, ब्रास और ब्रांच का आपको इलेक्ट्रोड होगा, टॉलरेंस जो है आपको इतना मिलेगा, रफनेस 1.5 माइक्रोन मिलेगा। पूरा प्रोसेस पैरामीटर आपको क्लियर आपको यहां पर सारा आपको बता दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का। Then what are the different application? ECM can be used to make the disc for the turbine rotor blades made of the HSTR. High strength टेंसाइल रेसिस्टेंस एलॉय के लिए आपको टरबाइन रोटर ब्लेड आपको ECM से बनेगा। ECM कैन बी यूज फॉर स्लोटिंग वेरी थिन वॉल्ड कॉलेट्स, आपको उसके लिए यूज होगा। ECM कैन बी यूज फॉर कॉपोइंग ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल सर्फेसेस, कटिंग ऑफ द curvilinear slot, machining of the intricate pattern, production of the long curve profile, machining of the gears, chain sockets, production of the inter-alley blade nozzle or use in the diesel locomotives, production of the satellite rings, connecting rods, machining of the large diaphragms। इसके लिए आपको जो है ECM का जो है एप्लीकेशन आपको यूज होता है। ECM कई जगह अभी जो है इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, काफी उसका एप्लीकेशन है, इसीलिए ECM की जानकारी होने के बाद आपको जॉब तुरंत मिल जाता है। ECM अगर आपको चलाना आता है तो जॉब तुरंत मिल जाता है। ECM principle has the employed for performing a number of the machining operations like turning, tree planing, broaching, grinding, fine hole drilling, die sinking, piercing, deburring, plunge cutting, etc. ECM can also be used to generate internal profile of the internal cams. इंटरनल कैम्स का इंटरनल प्रोफाइल भी आप ECM से बना सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस हैं वो ECM के हैं। ECM बहुत सारे एडवांटेज देते हैं। These are the advantages of the ECM process. ECM can machine highly complicated and curved surface in a single pass. कितना भी कॉम्प्लिकेटेड शेप हो, कितना भी कर्व्ड सरफेस हो, वो सिंगल पास में आप उसका रिप्लिका टूल में बना दीजिए, उस तरह का ECM में मशीन हो जाएगा। ये आपको बिगेस्ट एडवांटेज है। दूसरा मशीनिंग ऑपरेशन में आपको नहीं मिल सकता है। ये आपको जबरदस्त एडवांटेज है। किसी भी शेष कर्व सरफेस का हो वो आपका बन जाएगा। A single tool can be used to machine a large number of pieces without any loss in the shape and size, है ना। टूल लाइफ इज हाई, टूल लाइफ इसमें आपको हाई रहता है। मशीनबिलिटी ऑफ द वर्क मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें आपको मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड नहीं करता है मशीनेबिलिटी। इसमें आपको जो है कितना भी हार्डर मटेरियल होगा, स्ट्रेंथ होगा, जो है आपको मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। मशीन सरफेस आर स्ट्रेस एंड बर्न फ्री,
बहुत जबरदस्त एडवांटेज है। किसी भी तरह का उसमें आपको बर्न नहीं रहेगा, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा, और गुड सरफेस फिनिश आपको वहां पर आपको मिलेगा। इट yields लो स्क्रैप, almost automatic operation, low overall machining time, and reduced inventory expenses. There is no thermal damage and burr-free surface can be produced. ये सारे उसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज, हाई कैपिटल कॉस्ट। जितने भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस हैं सभी के डिसएडवांटेज है हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का हाई कैपिटल कॉस्ट। आप सभी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में ये डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। डिजाइन एंड टूलिंग सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, टूलिंग सिस्टम जो इसका बनेगा वो आपको कॉम्प्लेक्स होगा। हाइड्रोजन लिबरेटेड एट द टूल सरफेस में काउज हाइड्रोजन लिबरेटमेंट ऑफ द सरफेस। हाइड्रोजन जिसमें आपको लिबरेशन होता है तो आपको वर्क्स पीस में आपको हाइड्रोजन लिबरेटमेंट वो हो सकता है। स्पार्क डैमेज में बिकम समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक, इसमें आपको कभी कभी स्पार्क बन जाता है तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक है। फैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मशीन सरफेस में रिड्यूस एक कंपेयर टू द कन्वेंशनल टेक्निक। नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन नॉट बी मशीन, नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो है आपको मशीन नहीं हो सकता। ब्लाइंड होल्स कैन नॉट बी मशीन इन सॉलिड ब्लॉक इन वन स्टेज, ब्लाइंड होल जो है आपको इसमें नहीं बनेगा। कोरोजन एंड रस्ट ऑफ द ईसीएम मशीन कैन बी हैजर्ड। Space and the floor area requirement are also higher than for the conventional machining method. Some additional problems related to the machine tool requirement, such as a power supply, electrolyte handling, and tool fit servo system can be used. ये सारे जो है आपके डिसएडवांटेज हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस का। आपको ये डिसएडवांटेज आपको फिर से आपको रिपोर्ट करा दिया गया है। दूसरा, मेटल रिमूवल रेट कैलकुलेशन। मेटल रिमूवल रेट कैसे कैलकुलेशन होगा वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द ईसीएम मेटल फ्रॉम द एनोड वर्कपीस इज रिमूव्ड एटम by removing negative electrical charges that bind the surface atoms to their neighbors. इसमें एटम बाय एटम आपको वर्कपीस से जो है आपको मटेरियल जो है आयन जो है आपको Fe आयन हटाया जाता है। The ionized atoms are then positively charged and can be attracted away from the workpiece by an electric field. यही उसमें आपको ionized atom को हटाया जाता है। In an electrolytic cell, material removal rate is governed by the Faraday's law of the electrolysis. ये आपको Faraday's law of the electrolysis से आपको govern किया जाता है। The amount of the chemical change produced by an electric current is proportional to the quantity of the electric charges passed through the electrolyte. W is proportional to the Q. The amount of the different substances deposited or dissolved by the same quantity of electricity are proportional to their electrochemical equivalent weights. इसके आपके एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के आपके प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए EC equal to M by V, where M is the atomic weight and V is the valency. EC होगा M is the atomic weight and V is the valency. W जो है आपको ECU इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के उसके प्रोपोर्शनल होगा। Hence the metal removal rate, आपको W का फॉर्मूला ये होगा, मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला आपको ये होगा। Hence the metal removal rate will be given by 1 into F means Faraday constant, M by V IT. ये आपको मेटल रिमूवल रेट का आपको फॉर्मूला आपको यहां पर आपको बताया गया है। मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला जो है ECM में आपको यही होगा, यही आपको मेटल रिमूवल रेट का आपको फॉर्मूला है। फैराडे कांस्टेंट 96.500 कूलम होगा, Q इज द चार्ज होगा, I इज द करंट होगा एंड T इज द डिसोल्यूशन पीरियड होगा। ये आपको मेटल रिमूवल रेट आपको बताया जा रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द एलॉय। एलॉय का जब जो है उसमें आप निकालेंगे तो आपको कैसे निकलेगा वो यहां पर आपको बताया गया है। द इवोल्यूशन ऑफ द MRR becomes difficult when the anode is made of an alloy because the value of the electrochemical equivalent of an alloy. An alloy consists of the different elements to give the required property to find the rate of the dissolution of an alloy. One must consider each element separately from the combine them for the whole alloy.
1 to n number of elements in alloy, M1, M2, M3 atomic weight of individual element in alloy, V1, V2, V3 valency of the respective elements, X1, X2, X3, Xn percentage of the element present in the alloy. Rho is the density of the alloy, V is the volume goes into the solution. ये उसके alloy के बारे में बता रहा है. तो आपको weight of the first element will be given by this formula. Va rho x1 divided by 100. Weight of the second element will be given by this formula. Alloy के बारे में weight of the n element will be given by this formula. ये आपको बताया गया. The charge Q1, Q2 taken by each element present in the alloy can be given by Q1 is equal to this one, W1 FV1 by M1, Q2 W2 FV2 by M2, Q1 FW FV1 by M1. इसी के द्वारा आपको दिया जाता है टोटल चार्ज Q total will be Q1 plus Q2 plus Qn. Hence the Q total will be given by this formula. यहाँ से Q1, Q2, Qn ये सारा लाके यहाँ पे रख दिया गया है और इसके फॉर्मूला से आपको निकाला जाता है. Hence volumetric material removal rate per unit charge is given by this formula. है ना? ये फॉर्मूला आपको Q total का दे दिया गया है, MRR का दे दिया गया है. ये आपको यहाँ पर आपको किसी भी alloy का आपको मेटल रिमूवल रेट और Q total ये आपको यहाँ पर आपको निकल जाएगा. दूसरा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ECM प्रोसेस. व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको क्या होगा ECM प्रोसेस में, तो ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है. सरफेस फिनिश जो होगा, फैक्टिक लाइफ इनटू 10.5 साइकिल्स, इलेक्ट्रोकेमिकली पॉलिश्ड 4.9, ईस्ट 4.4, है ना. टाइप ऑफ फिनिश, इरेगुलर अटैक ये इतना होगा, हेमिस्फेरिकल पिट्स इतना होगा. ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया गया है. दूसरा, डायनेमिक्स ऑफ द ECM प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द डायनेमिक्स ऑफ द ECM प्रोसेस? तो यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है. टूल आपको ऊपर रहेगा, वर्कपीस आपको पॉजिटिव रहेगा, आपको यहाँ बीच में इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और DH यहाँ से आपको हटेगा. ये आपको बीच में ये आपको डायनेमिक्स आपको बताया गया है. The H is the gap between the tool and the workpiece and constant voltage भी ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया. जीरो फिट रेट क्या होगा? Now if DH is change in the gap, DT area of the cross section, A is the density of the material, rho then the weight dissolved. ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है. What is the fit rate? On substituting the value of the I from the equation, we can rewrite DH by DT 1 by F and constant voltage DH by DT CH. ये आपको बताया गया है. C will be this one and C का वैल्यू आपको ये होगा, ये आपको यहां पर बताया गया है. दूसरा, डायनेमिक्स अंडर गिवन फिट कंडीशन. अंडर गिवन फिट कंडीशन में if F feed S is given to the tool, then equation is modified to DH by DT CH minus CA minus S. DH by DT equal to 0, hence the CH by equal to S. ये आपको the gap under steady state condition HE जो है आपको यहां से मिल जाएगा, है ना. कितना गैप? अटेंडेंस. हाँ जी सर. अच्छा, मैं फिर से आपका अटेंडेंस से एक लड़का इंटर किया है, वो मैं दे उसको इंटर किया हूं. मैं आपको फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं. राहुल जी 32, रौनक कुमार जी 39, अभिषेक दुबे जी 2, अंकित शर्मा जी 6, आशीष जी 7, चंदन शाह जी 8, हृदय जी 19, जितेंद्र राणा जी 23, नंदिनी जी 29, पवन नेगी जी 30, प्रिंस सरोवा जी 31, राहुल जी 32, राहुल सिंह जी 34, ऋषभ नायक जी 54, 54, 54 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
शेखर जी 41, हिमांशु पुंडीर जी 18, जैनेश चौहान जी 22, है ना। ये आपका अटेंडेंस है। जैनेश चौहान जी 22, हिमांशु पुंडीर जी 18, 41 शेखर जी, ऋषभ नायक जी 54, राहुल सिंह जी 34, राहुल जी 32, प्रिंस सरोहा जी 31, पवन नेगी जी 32, नंदिनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, हृदय जी 19, चंदन शाह जी 8, आशीष जी 7, अंकित शर्मा जी 6, अभिषेक दुबे जी 2, रौनक कुमार जी 39। ये आपको अटेंडेंस है। तो आपको फिट कंडीशन, फिट कितना दिया जाएगा ये यहां पर आपको C/H ये आपको यहां पर आपको निकाल दिया गया है। फिट कितना दिया जाएगा उसके बारे में आपको बता दिया गया है। दूसरा जो गैप जो है कितना दे दिया जाएगा ये आपको यहां इस फार्मूला से आपको गैप निकाला गया है, H/HE, SH/SC, ये आपको DH/DT गैप जो वैरी करेंगे और वो आपको बताया गया है। ये आपको प्लॉट जो है आपको ये ग्राफ में भी आपको बताया गया है। H0 आपको 5 हो जाएगा, H0 4 हो जाएगा, H0 3 हो जाएगा। तो टाइम यूनिट्स इन द टर्म ऑफ द मशीनिंग इक्विलिब्रियम एंड द गैप मेंटेन कितना करेंगे वो आपको यहाँ पर ये फार्मूला से आपको गैप मेंटेन का आपको यहाँ पर इसको बताया गया है। कितना गैप जो है मिल्टन करेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स ऑफ द ECM प्रोसेस, हाइड्रोडायनेमिक्स या ECM प्रोसेस का वो क्या होगा वो आपको यहां पर बताया गया है। इट इज क्लियर दैट द मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीजेज विथ द करंट एंड द मशीन कैन बी ऑपरेटेड एट द हाईएस्ट फीड रेट कंडीशन। The increased current will produce more heat in the joule heating that might reach a boiling condition and prevent the electrolyte reaction further. So it is necessary to allow sufficient flow of the electrolyte through the gap in the figure, a pair of the parallel electrodes. जो आपको हीट प्रोड्यूस होगा I²R, ये आपको I², ये आपको फॉर्मूला दिया गया है जो आपको हीट प्रोड्यूस होगा। Cp is the average specific heat of the electrolyte and specific resistance is assumed, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है। कैथोड टूल, एनोड वर्कपीस, आपको U जो है इलेक्ट्रोलाइट फ्लो वेलोसिटी, टूल फीड H भी ये आपको यहां पर फ्लो थ्रू ए पेयर ऑफ द पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको यहां पे आपको दिखाया गया है। बताइए हिमांशु जी, बताइए हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे? कुछ कहना चाह रहे हैं हिमांशु जी? आपने हैंड राइज किया है, कुछ कहना है तो आप यहां पे क्लियर कीजिए। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस का आपको प्रिंसिपल बताया गया है। ये आपको प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। टूल और वर्कपीस रहेगा, जिस तरह का टूल का शेप होगा उस तरह का वर्कपीस का आपको शेप हो जाएगा, है ना। ये आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे आपको डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। डीसी वोल्टेज इसमें 5 to 25 वोल्ट होगा और जो गैप होगा वो 0.1 से 0.2 mm के बीच में होगा। ये जो गैप है बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री यहां पर। हम बताइए, बताइए कुछ कहना चाह रहे? जैनेश जी बताइए, जैनेश चौहान जी, हिमांशु पुंडरी जी। ये लेक्चर नोट्स आपको दे दिए गए हैं और इसका MCQ भी आपको भेज दिया गया है ना। तो लेक्चर नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा आप कभी भी फोन करके आप उसमें क्लियर कर सकते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस है। ये जो ECM प्रोसेस को दोबारा हमने इसमें रिपीट किया है। पहले दिन केमिस्ट्री नहीं बताई थी तो आज केमिस्ट्री आपको बता दिया गया है। मेटल रिमूवल रेट वो आपको यहां पर आपको बता दिया गया है। केमिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस वो आपको क्लियर कर दिया गया है। जो रिएक्शन होगा
ये आपको केमिस्ट्री है